اسلامی تعاون تنظیم کا بھارت اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں اسلاموفوبیا، نفرت انگیز تقاریر اور مسلمانوں پر انتقامی حملوں کے بڑھتے رجحان پر شدید تشویش اور مذمت کا اظہار۔ OIC نے بھارت سے نفرت انگیز حملوں کی غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ OIC کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نفرت انگیز حملوں کی غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی جائیں۔ بھارت اقوام متحدہ کے انسانی حقوق معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پارٹی قائد میاں نواز شریف سے لاہور میں اہم ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد نون لیگ کو پاک بھارت جنگ کے تناظر میں پیدا ہنگامی صورتحال اور پاکستان کی طرف سے دفاعی اقدامات پر بریفنگ دی۔ کور کمانڈر کانفرنس اور قومی سلامتی کونسل میں کیے گئے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا۔ نواز شریف نے چین، ترکیہ اور آذربائیجان کی طرف سے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کو خطے کے لیے گیم چینجر قرار دیا۔ انہوں نے ابدالی میزائل کے کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد دی۔ کہا ملکی دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا گیا، قوم سکون کی نیند سوئے۔ پہلگام ڈرامہ رچا کر بھارت کی عالمی سطح پر دہشت گردی کھل کر سامنے آ گئی، بھارت منہ چھپانے کے قابل نہیں رہا۔ بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قائد نون لیگ سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا مودی کے جنگی جنون کو دنیا میں کہیں بھی حمایت نہیں ملی، پاکستانی موقف کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ میدان جنگ میں شکست دیکھ کر بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں پر اتر آیا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد کی صورتحال، بھارتی میڈیا کے جھوٹے دعووں اور قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج اہم بریفنگ دیں گے۔ بریفنگ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو موجودہ قومی سلامتی کی صورتحال کے پس منظر میں دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا حکومتی بریفنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ سیاسی کمیٹی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حالیہ حساس حالات میں حکومت کو فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی۔ حکومتی وزیر کی طرف سے یک طرفہ بریفنگ دی جا رہی ہے، اس میں کوئی قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آتی۔ بیان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے، بیرونی جارحیت کی صورت میں ملک اور قوم کے دفاع کے لیے صف اول میں کھڑے ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ملائیشین وزیر اعظم کا بھارت کے اشتعال انگیز رویے پر شدید تشویش کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تحقیقات میں ملائیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ملائیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری محمد حسن سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے ملائیشین وزیر خارجہ کو بتایا کہ بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ملائیشین وزیر خارجہ کی طرف سے پاکستان کے موقف کی حمایت کی گئی۔ سری محمد حسن نے کہا کہ فریقین ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسقط میں عمانی ہم منصب سید حمود بن فیصل البوسیدی سے ملاقات۔ محسن نقوی نے عمانی وزیر داخلہ کو پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے عمان کے ایک روزہ سرکاری دورے پر مسقط پہنچنے پر عمانی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام، سیکرٹری داخلہ خالد بن ہلال بن سعود البوسیدی اور دیگر نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی بند کیا تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا، نیوکلیئر جنگ کا سوچنا مناسب نہیں، کوئی ذمہ دار ملک ایسا نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستان نے واقعے کی عالمی سطح پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے، جب بھی ملک پر مشکل وقت آیا قوم نے ہر امتحان میں پورا کرنے کی مثال قائم کی۔
भारत से कशीदगी। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार जहाज़ों की पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आमद और रफ्त पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। कोई भी भारतीय जहाज़ पाकिस्तान की किसी बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं हो सकेगा। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवार ने वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। कहा, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ भी किसी भारतीय बंदरगाह पर नहीं रुकेंगे। वज़ारत बहरी उमूर की जानिब से बाज़ाब्ता हिदायतनामा जारी कर दिया गया। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का 11वां रोज़। गुज़िश्ता 10 दिनों में 1150 परवाज़ें मुतासिर हुईं। भारतीय एयरलाइंस को 225 करोड़ भारतीय रुपये से ज़ायद नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय तैयारों को लंबे रास्ता अख्तियार करने पर फ्यूल और दीगर अखराजात दुगने हो गए। सबसे ज़्यादा नुकसान एयर इंडिया और इंडिगो एयर को हुआ। मुसाफिर दीगर मुल्कों की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे। रिफंड्स में भी मुश्किलात दरपेश। वाघा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड ने हाज़रीन का लहू गरमा दिया। फ़ज़ा में नारा तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। तकरीब में मुफ्ती तारिक मसूद भी शरीक। कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। मोदी खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। मोदी को शौक़ है लड़ने का तो लड़े, शौक़ पूरा हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम का पाक फौज से इज़हार यकजहती। शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। पाक फौज के काफिले पर फूल फेंक कर मोहब्बत और यकजहती का इज़हार किया। फौजी जवानों ने हमेशा की तरह कौम की मोहब्बत हाथ उठाकर वसूल की और एक होने का सबूत दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज तस्बीह के दानों के मानंद हैं। कुदरती आफत हो या दुश्मन से जंग, अवाम हमेशा मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहे। अब भी वही जज्बा कायम है। भारत की किसी भी जारियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुल्क की आज़ादी और सालमियत की बका के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम और पाक अफवाज यकजान है। कभी उनसे इंतखाबात जीतने के लिए पुलवामा फॉल्स फ्लैग करें, कभी कुछ और कभी कुछ। स्टैंड बाय our Prime Minister. We stand by our Foreign Office. We stand by our forces. Pakistan Zindabad. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुमकिन भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई। नामवर शख्सियात ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात पर भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और बीजेपी के ड्रामे का पोल खोल दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक इंटेलिजेंस की नाकामियों पर पर्दा डालकर जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जुल्म और जबर से मसला हल नहीं हो रहा और बहरान मज़ीद संगीन हो रहा है। बीजेपी का आबादियाती एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका है। भारतीय पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री जारी। डॉक्यूमेंट्री में पहलगाम फॉल्स फ्लैग के असल महरक़ात, ज़मीनी हक़ाइक़ और भारत की तरफ से बनाए गए झूठे बयानिए को उजागर किया गया है। डॉक्यूमेंट्री में भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए गए हैं। भारतीय अवाम, सियासतदानों और तमाम मकातिब फ़िक्र की तरफ से पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर उठाए जाने वाले संजीदा सवाल भी डॉक्यूमेंट्री में शामिल हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इंडियन मीडिया वॉचडॉग न्यूज़ लॉन्ड्री ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के फौरी बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, पाकिस्तान को खुलम खुला धमकियाँ दी। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज़ भी कर दिया। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया पर मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी ने नून लीग और पीटीआई के हामियों को भी बुलाकर प्रोपेगेंडा करने की नाकाम कोशिश की। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पूरी तवज्जो पाकिस्तान के साथ जंग पर मरकूज कर दी है। भारतीय न्यूज़ चैनल्स और एंकर्स पूरे मुल्क के लिए बाइस से शर्मिंदगी है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ज़ेर सदारत महकमा तालीम का इजलास, स्कूल एजुकेशन के मौजूद और मुजव्वज़ा मनसूबों पर ब्रीफिंग। पंजाब में 11,000 से ज़्यादा स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। बच्चों की एनरोलमेंट में कई गुना इजाफा हो गया। स्कूलों में 11 लाख बच्चों के दाखिलों पर वज़ीर आला मरीम नवाज की वज़ीर तालीम को शाबाश। 10 अरब रुपए से 90 दिन में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी और 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लास रूम्स बनाने का हुक्म दे दिया। मुल्तान में वालिदैन अपने 3 कमसिन बीमार बच्चों को चिल्ड्रन अस्पताल में लावारिस छोड़कर लापता हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अफजल नामी शख्स और उसकी बीवी गुज़िश्ता रात तीनों बीमार बच्चों को अस्पताल लाए थे। तीनों बच्चों को ऑक्सीजन लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक ज़ेर इलाज लावारिस बच्चों के वालिदैन का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहिला वाली से है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 31,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें ज़ब्त, 23 बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ, 32 LPG और CNG किट्स भी जब्त की गईं। गलत सड़क में ड्राइविंग पर 311 ड्राइवर गिरफ्तार, 33 मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। शहरी कानून की पासदारी करें। शहर कायद की सड़कों पर बेलगाम हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी। कराची की इंतजामिया और पुलिस लगाम डालने में नाकाम। रमा साल अब तक खूनी खेल में 310 शहरी अपनी कीमती जिंदगियों से महरूम हो चुके हैं, जिनमें 234 मर्द, 27 खवातीन और 40 बच्चे शामिल हैं। तकरीबन 100 अफराद हैवी गाड़ियों की जद में आकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। जामिया कराची के करीब वाटर लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। कराची में पानी की फराहमी आज से बहाल हो जाएगी। हुक्काम के मुताबिक 24 घंटे में मुतासरा इलाकों में पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। महकमा मौसमियात ने कल शाम कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। हैदराबाद और गिरदोनवाह में गर्द गुबार का तूफान और बूंदाबांदी। गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। टंडो मोहम्मद खान में तेज़ हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान, 16 प्लेटें गिर गईं। कच्चे मकानात और झोंपड़ियों की छतें उड़ गईं। आंधी के बायस आम की फसल को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने सऊदी अरब को $3.5 अरब का असलहा फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब के लिए जदीद मिसाइलों समेत दूसरे अहम हथियारों असलहे की फरोख्त की मंजूरी की तस्दीक की है। असलहा डील में फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले 1000 जदीद मिसाइल भी शामिल। पेंटागन के मुताबिक असलहा डील अमरीकी खारजा पॉलिसी के अहदाफ को पूरा करने और अमरीकी कौमी सलामती के मकासद निभाने में मददगार होगी। ऑस्ट्रेलिया के आम इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने दूसरी मुद्दत के लिए कामयाबी हासिल कर ली। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के आम इंतखाबात में बाएं बाजू की लेबर पार्टी ने क़दामत पसंद लिबरल नेशनल इत्तेहाद को शिकस्त दे दी। लिबरल नेशनल इत्तेहाद के सरबराह पीटर डटन ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ को फ़ोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पपाया रूम के लिबास में अपनी AI जनरेटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तस्वीर में वो पोप की तरह सफ़ेद लिबास और पोप की मखसूस टोपी पहने नजर आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने तस्वीर को कोई उन्वान नहीं दिया, मगर चंद दिन पहले पोप के जानशीन के सवाल पर कहा था कि वो खुद पोप बनना चाहेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग 10वें एडिशन के 23वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 158 रन बनाए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 विकेटों के नुकसान पर 20वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। जीत में नुमाया किरदार हसन नवाज का रहा। 41 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 64 रन बनाए। आज इवेंट के 24वें मैच में लाहौर कलंदर्स कसाफी स्टेडियम में कराची किंग्स का सामना करेंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें
تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔